Hello students, now we will move to 7th question. In which ratio point 11:15 divides the line segment which joins 15:5 and 9:20? In which ratio point 11:15 divides the line segment which joins 15:5 and 9:20? Question number 7. There are 2 points as always. A 15:5 and B 9:20. Line joining these 2 points. A point P. The name is our coordinates are 11, 15. 11, 15. Okay. So in which ratio this point divides this line? Okay, so let P 11, 15 divides line segment AB in M1 ratio M2. Okay, so by section formula, x is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2. Now this x is 11. Okay, so 11 is equal to m1 is m1 or x2 is 9 plus m2 is m2 or x1 is 15 divided by m1 plus m2. Now we will move m1 plus m2 LHS. So 11 m1 plus m2 is equal to 9 m1 plus 15 m2. 11 m1 plus 11 m2 is equal to 9 m1 plus 15 m2. 9 m1 इधर आएगा, so 11 m1 minus 9 m1 is equal to 15 m2 minus 11 m2. So यहाँ पे आएगा 9, sorry 11 minus 9 2 m1 is equal to 15 minus 11 4 m2. So m1 upon m2 is equal to 4 divided by 2. 2 से 2 time cancelled, 2 divided by 1. So m1 ratio m2 is equal to 2 ratio 1. This is answer. Now question number 8. If point P 3,5 divides line segment which join -2, 3 and B xy in ratio 4:7 internally, then find the coordinates of B. So question number 8. ऐसा क्वेश्चन हम एग्जांपल्स में कर चुके हैं. So these are 2 points A -2, 3 and B x y. Okay, so a point P which 3,5. So this P point divides line AB in ratio 4:7. M1 ratio M2 is equal to 4:7. Okay, so we know that क्वेश्चन में क्या कह रहा है, let P 3,5 divides line segment AB. Line segment AB divides in ratio 4:7 internally. So m1 कितना हो गया 4 और m2 7 और यहां पे हमारे पास
x1 हो जाएगा क्या -2 और x2 हो जाएगा x, y1 इज इक्वल टू 3 और y2 इज इक्वल टू y2 y। ओके, और m1 m2 हमने लिख दिया पहले, ठीक है। और x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये x और y हमें फाइंड करने हैं, मतलब x2 और y2 हमें फाइंड करने हैं। सो बाइसेक्शन फॉर्मूला, बाइसेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 divided by m1 plus m2. So x is 3 is equal to m1 हमें गिवन है क्या 4 multiplied by x2 is x plus m2 is 7 multiplied by x1 is -2 divided by m1 4 plus 7. Okay, now 3 is equal to 4x plus minus 7 to the 14 plus minus 14 divided by 7 plus 4 11. ये 11 इस तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33 is equal to 4x minus 14. 4x minus 14. So 4x is equal to 33 plus 14. 4x is equal to 3 plus 4 7 और 3 plus 1 4. So x is equal to 47 divided by 4. Okay, x की वैल्यू क्या आ गई 47 divided by 4. Now we have to find y. So y is equal to हमें क्या गिवन है m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. So y is 5. 5 is equal to m1 4 multiplied by y2 y plus m2 कितना है 7 multiplied by y1 is -2 divide -2 3 और यहाँ पे 4 plus 7 तो 5 is equal to 4y plus 7 3 जा 21 divided by 4 plus 7 11 इस तरह के मल्टीप्लाई तो 55 is equal to 4y plus 21. So 4y is equal to 55 minus 21. ये 20 इधर आके माइनस हो जाएगा. So 4y is equal to 5 minus 1 4 और यहाँ पे कितना रह गया 5 minus 1 4 और 5 minus 2 3. तो y is equal to 34 divided by 4. तो y is equal to 17 divided by 2. ये हमारे पास आंसर हमारे पास ये b की वैल्यू क्या आ गई. सो b हमारे पास क्या था xy तो b इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे था 47 डिवाइडेड बाय 4 47 डिवाइडेड बाय 4 एंड 17 डिवाइडेड बाय ये हमारे पास सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन जॉइनिंग पॉइंट 11 9 एंड 1 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Question says that a line which joining 2 points A 11 9 and B 1 2. Okay, this line is trisected in 3 equal parts. Trisect मतलब 3 equal parts. So divided in 3 equal parts. अगर 3 parts में कितने पॉइंट लगाने पड़ेंगे 2 पॉइंट्स. अगर ये इस लाइन के ऊपर ए बी के ऊपर अगर हम 2 पॉइंट लगे तब तो 3 पार्ट डिवाइड हो पाएगा ये. सो वी द 2 पॉइंट्स आर P X Y. ओके X1 Y1 और Q X2 Y. ओके ये हमारे पास 2 पॉइंट्स है P और Q विच ट्राइसेक्ट द लाइन AP. मींस AP इज इक्वल टू PQ is equal to PB. सॉरी QB. ओके सो देखो इसको कैसे करेंगे. लेट P and
Q points trisect the line AB. Okay, so and P XY and Q X1 Y1 and Q X2 Y2, ये हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, हमें देखो ये अगर हमें P पॉइंट फाइंड करना है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, AP रेशियो PB रेशियो मालूम होना चाहिए, तभी हम सेकंड फॉर्मूला यूज करके हम P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। और Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए, क्या, AQ रेशियो BQ, तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे। लेकिन हमें रेशियो गिवन नहीं है तो हम रेशियो फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देखो, we know that AP is equal to PQ is equal to BQ. We know that AP is equal to PQ is equal to BQ. These three parts are equal. So let AP is equal to PQ is equal to BQ is equal to capital X. Capital X. Okay, if this is capital X, it means AP, अगर हम बात करें क्या किसकी, PB, PB is equal to PQ plus BQ, PQ plus BQ. So PB is equal to कितना आ गया, capital X plus capital X. PB is equal to capital X. Okay, now we know that AP is equal to X. So what is the ratio of AP ratio PB, कितना आ जाएगा, AP कितना है, कैपिटल X, और PB कितना है, स्मॉल x. तो x होता है x, सॉरी कैपिटल x कैंसिल, तो AP रेशियो PB इज इक्वल टू 1:2 आ गया। इसका मतलब हमारे पास AP और PB का रेशियो कितना आ गया, 1:2। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट P है वो, अगर हम इस पॉइंट को भूल जाए Q को, सिर्फ अभी हमारे पास याद रखते हैं कि हमारे पास सिर्फ P पॉइंट ही है, तो P पॉइंट जो है जो AB लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2 के अंदर। आई बात समझ में। सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर द Q, तो पहला P की कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। सो P divides line segment in 1:2। तो M1 कितना आ गया, 1, और M2 2। X1 कितना है, X1 कितना हमारे पास 11, और X2 कितना है 1। ओके, और Y1 कितना है हमारे पास 9, और Y2 कितना है 2, और क्या चाहिए हमें, बस ये X1 X क्या है X1, और Y क्या है X2। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो x कितना है हमारे पास, X1, हमें x क्या फाइंड करना है, X1 इज इक्वल टू M1 इज 1 मल्टीप्लाई बाय X2 1 प्लस M2 इज 2 मल्टीप्लाई बाय X1 इज 11 divided by 1 plus 2. So X1 is equal to 1 plus 11 to the 22 divided by 3. तो क्या आ जाएगा हमारे पास 23 divided by 2। ये आ गया हमारे पास इस X की वैल्यू। सिमिलरली Y कैसे, M1 Y2 प्लस M1 M2 Y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2।
सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y1 इज इक्वल टू m1 1 मल्टीप्लाई बाय y2 2 प्लस m2 2 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 1 प्लस 2 so y1 is equal to 2 plus 9 to the 18 divided by 3 so y1 is equal to 20 divided by 3 तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई x1 y1 तो p is equal to 23 divided by 2 and 20 divided by 3 यहाँ पे भी 3 आएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 ये हमारा आंसर ये p की वैल्यू आ गई हमारे पास सिमिलरली वी विल सॉल्व फॉर द q ये हमने सॉल्व किया था p के लिए नाउ सिमिलरली वी विल सॉल्व फॉर q वी नो दैट ap प्लस pq इज इक्वल टू क्या है हमारे पास aq तो aq कितना आ जाएगा कैपिटल X प्लस कैपिटल X तो AQ इज इक्वल टू 2 कैपिटल X एंड वी नो दैट BQ इज इक्वल टू कैपिटल X BQ इज इक्वल टू कैपिटल X तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ AQ रेशियो BQ we have to find the AQ रेशियो BQ तो AQ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x और BQ इज कैपिटल X से X कैंसिल तो AQ रेशियो BQ कितना आ गया 2:1 इसका मतलब क्या हुआ ये Q पॉइंट जो है AB लाइन को 2:1 में डिवाइड कर रहा है तो अब हमारे पास रेशियो मालूम चल गया है तो हम Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो बाय सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 x1 कितना है हमारे पास x2 और m1 इज 2 मल्टीप्लाई बाय x2 इज 1 प्लस m2 1 मल्टीप्लाई बाय x1 इज 11 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 1 so x2 is equal to 2 plus 11 divided by 3 तो x2 is equal to 11 plus 2 13 divided by 3 ये x2 की वैल्यू आ गई now we will solve for y2 so y is equal to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 so ये हो जाएगा y2 is equal to m1 2 multiply by 2 plus m1 1 is equal to 9 y1 is equal to 9 so 2 plus 1 so y2 is equal to 4 plus 9 1 9 divided by 3 so y2 is equal to 9 plus 4 13 divided by 3 तो q is equal to क्या था x2 y2 so q is equal to हमारे पास क्या आ गया 13 divided by 3 and 13 divided by 3. 10th question. Find the coordinates of point which quadrisect the line joining point -40 and 0, 6. Question number 10. Now there are 2 points which joins a line. A point is -40 and B point is 0,6. अब क्वेश्चन ये कह रहा है हमें कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हमने 4 पार्ट्स में क्वार्टर सेट मत मींस 4 इक्वल पार्ट्स जैसे ट्राइसेट और 3 इक्वल पार्ट्स वैसे क्वार्टर सेट मींस 4 इक्वल पार्ट्स तो अगर 4 इक्वल पार्ट्स है तो पॉइंट्स कितने होंगे 3 1 2 3 ओके सो P Q एंड R तो ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए कि नहीं हो गए अगर 3 पॉइंट आ गए तो अब हमें क्या करना है वैसे जैसे पहले क्या था वैसे ये रेशियो फाइंड करना है AP रेशियो ये PB रेशियो फिर
ए क्यू रेशियो, बी क्यू रेशियो, उसके बाद ए आर आर बी रेशियो, ये रेशियो फाइंड करना है। उसके बाद हमें पी क्यू आर, हमें सारी चीजें हमें फाइंड करनी है। लेकिन इसको हम अगर मान लो ये हमें, लेकिन ये कह रहा है कि ये क्वार्टर सेट है, 4 इक्वल पार्ट्स हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये क्यू जो है इस लाइन का मिड पॉइंट होगा। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, बिकॉज इफ दिस क्वार्टर सेगमेंट, मतलब दिस 4 आर इक्वल पार्ट, इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल होगा, इसका मतलब क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो बाय द वी कैन सॉल्व क्यू बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो let P Q R are quarter set, the line AB. Okay, so we know that AP is equal to PQ is equal to QR is equal to RB. It means AQ is equal to QB. AQ is equal to QB होगा. It means Q is the midpoint of AB. Q is midpoint of AB. Q is the midpoint of AB. So by midpoint formula, क्या हो जाएगा, x कैसे आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2. सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0, सॉरी -4 और 0, -4 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2. x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -2. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2. नाउ वी विल सॉल्व फॉर y. y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. सो y इज इक्वल टू 0 और 6, 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2. सो y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3. सो y इज इक्वल टू 3. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, कितना है, ये -2 3, -2 3. Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए. अब हमें ये भी मालूम है कि AP इज इक्वल टू PQ. AP इज इक्वल टू PQ है, इसका मतलब P भी मिड पॉइंट है AQ का. P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ. सो वी नो दैट AP is equal to PQ. So P is midpoint of AQ. AQ का मिड पॉइंट क्या है, P. तो क्या हम P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला, फिर से x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2. सो x इज इक्वल टू, यहां पे x क्या है, यहां पर p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0, सो -2 3 आ गई. तो -4 प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2. So x is equal to -4 -2 divided by 2, -6 divided by 2. So x is equal to क्या आ गया, -3. x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, -3. Now again for the y. y के लिए क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. अब हमारे पास y के लिए y1 क्या है 0 और y ये कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2. हमने पहले क्या इन दोनों का मिड पॉइंट ये निकाला था, अब इन दोनों का मिड पॉइंट ये निकाल रहे हैं. ओके, सो y इज इक्वल टू 3 बाय 2. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P
कितने आ गया हमारे पास, -3 and 3/2. Okay, now we know that QR is equal to RB. We know that QR is equal to RB. It means R is the midpoint of QB. R is midpoint of QB. So by midpoint formula, by the midpoint formula, x is equal to x1 plus x2 divided by 2. x is equal to, अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है, -2 और 0, -2 plus 0 divided by 2, so x is equal to -2 divided by 2 is equal to -1, x is equal to -1. Okay, then for the y is equal to y1 plus y2 divided by 2, so y is equal to y1 is 3 और ये 6, ये 3 plus 6 divided by 2, so y is equal to 3 plus 6 9 divided by 2, so y is equal to क्या आ गया, 9/2. So coordinates of R कितने आ गए, -1 and 9/2. इसको सॉल्व करके क्या ये भी लिख सकते हैं कि -1 2 4 जा 8 और ये 1, ये हमारे पास पूरे आंसर आ जाएंगे. ध्यान रखना, इस तरह के मिड पॉइंट यूज करके हम कब तभी कर सकते हैं जब हमारे पास ये कितने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड द रेशियो इन विच लाइन 3x plus y is equal to 9 divide the line segment which joins point 13 and 27. so सेम क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जांपल नंबर 6 की तरह. क्वेश्चन नंबर 11. Find the ratio in which line segment let line segment 3x plus y is equal to 6 plus y is equal to 9 divides line AB in m1 ratio m2 at point P. कैसे? This is line segment A B. This is line segment कौन सी, ये वाली 3x plus y. 3x plus y is equal to 9. Okay, this line, ये वाली line divides line AB at point P. X y. This line 3x plus y is equal to 9 divides line segment AB at point P x y. P यहाँ पे तो x y. Okay, so हमें कोऑर्डिनेट रखे 1 3 2 7, 1 3 and 2 7. हमने क्या किया था इसके अंदर, हमने इसके अंदर किया था क्या कि ये पहले तो हमने ये x पॉइंट फाइंड किया था y के सेक्शन फॉर्मूला, देन y फाइंड किया था, उसके बाद x और y को हमने इस इक्वेशन पुट करके हमने क्या किया था m1 और m2 का रेशियो हमने फाइंड किया था. वैसे करेंगे. सो x1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 3 एंड y2 इज इक्वल टू 7. ओके, और रेशियो m1 रेशियो m2 है और इसकी कोऑर्डिनेट्स है x और y दोनों है. ठीक है. सो बाय सेक्शन फॉर्मूला, x is equal to m1 x2 divided by m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2. So x is equal to m1 multiplied by x2 2 plus m2 multiplied by x1 1 divided by m1 plus m2. So x की वैल्यू क्या आ गई, 2m1 plus m2 divided by
m1 plus m2. ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू. नाउ सिमिलरली वी विल फाइंड फॉर द वैल्यू ऑफ y. y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. y is equal to m1 multiply by y2 7 plus m2 y1 3 divided by m1 plus m2. So y is equal to 7 m1 plus 3 m2 divided by m1 plus m2. Now we got the values of x and y. Now we will put this x value of x and y in equation number 3x plus y is equal to 9. Putting values of x and y in equation 3x plus y is equal to 9. So 3x plus y is equal to 9. 3 multiply by 2m1 plus m2 divided by m1 plus m2. Okay, plus y is equal to 7m1 plus 3m2 divided by m1 plus m2 is equal to 9. 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6m1, 3 to the 6m1 और 3m2 plus 3m2 divided by m1 plus m2 plus 7m1 plus 3m2, 7m1 plus 3m2 divided by m1 plus m2 is equal to 9. Okay, now we will take the LCM. LCM will be m1 plus m2 because दोनों जगह सेम ही है तो 6m1 plus 3m2 plus 7m1 plus 3m2 is equal to 9. ये m1 plus m2 जाके 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 6m1 plus 7m1, 6 plus 7 13m1, 3 plus 3 6 m2 is equal to 9 m1 plus 9 m2. अब m1 को एक तरफ लेके जाना और m2 को एक तरफ, तो 13 m1 minus 9 m1 is equal to 9 m2 minus 6 m2. 13 minus 9 4 m1 is equal to 9 minus 6 3 m2. So m1 upon m2 is equal to 3 divided by 4. So m1 ratio m2 is equal to 3 ratio 4. ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 3 ratio 4. So line segment 3x plus y is equal to 9 divides line segment AB in ratio 3 ratio 4. ये आंसर. Find the ratio where point minus 3p divides internally the line segment which joins point minus 5, minus 4 and minus 2, 3. Also find p. अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12 says that in what ratio the where point p minus 3p divides internally a line segment AB. A is minus 5 minus 4 and my B is minus 2 3. A point P divides line segment at minus 3p. ओके, सो हमें क्या बताना है कि ये जो पॉइंट P है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और फिर रेशियो फाइंड करने के बाद हमें ये P भी फाइंड करना, मतलब y कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड कर सकते हैं. लेट P minus 3p divides line segment AB in m1 ratio m2. Okay, so x1 is equal to minus 5 और x2 is equal to minus 2.
y1 इज इक्वल टू -4 एंड y2 इज इक्वल टू 3 हमारे पास है, और m1 रेशियो m2 है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू m1 प्लस एंड m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो x क्या है हमारे पास यहाँ पे, -3 -3 इज इक्वल टू m1 x2 ये -2 प्लस m2 और x1 कितना है, -5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, -3m1 -3m2 इज इक्वल टू -2m1 -5m2। अब m1 को एक तरफ ले जाए और m2 को एक तरफ, तो -3m1 इधर आके माइनस का प्लस 2m1 इज इक्वल टू -5m2 उधर जाकर के प्लस 3m2। -3m1 2m1 इज इक्वल टू -m1 इज इक्वल टू -5m2 और 3m2 इज इक्वल टू -2m2। सो माइनस से माइनस कैंसिल, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1, सॉरी 2 डिवाइडेड बाय 1। तो m1 रेशियो m2 कितना आ गया, m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2:1। इसका क्या मतलब हुआ, ये पॉइंट P जो है AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किसमें, 2:1। तो P divides लाइन सेगमेंट AB in 2:1। अब हमें रेशियो मालूम करता हूं, क्या y को डिफाइन कर सकती है। सो अगेन सेक्शन फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, हमें y के कोऑर्डिनेट फाइंड, तो y लगाएंगे, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो y इज इक्वल टू p इज इक्वल टू m1 क्या था 2 और y2 कितना है 3 प्लस m2 इज 1 मल्टीप्लाई y1 इज -4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। सो p इज इक्वल टू 6, 3 to the 6 प्लस माइनस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 3। तो p इज इक्वल टू 2/3। तो p की वैल्यू क्या आ गई, सो p इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पहले इस x कोऑर्डिनेट को रख करके हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे, रेशियो आने के बाद हम y कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेंगे। ओके, तो 9.2 एक्सरसाइज कंप्लीटेड।